तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन पीएच। हम डिस्कस कर रहे थे हम कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच निकालते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। डिटरमाइन पीएच ऑफ 0.0005 molar H2SO4. Question has been asked in previous exams. 0.005 molar H2SO4. We know that हमें पता है जो H2SO4 है, जो H2SO4 है वो डिसोसिएट होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस एंड HSO4 माइनस आयन्स में। हमें यहाँ कंसेंट्रेशन दी हुई है दैट इज 0.005। व्हाट इज दिस 0.0005? कैन आई राइट इट लाइक दिस 5 डिवाइडेड बाय 10000, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 4, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 इंटू 10 raised to power 4 को ऊपर ले जाओ 10 raised to power -4, तो इसकी कंसेंट्रेशन है 5 इंटू 10 raised to power -4। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये डिसोसिएट होगा, इसकी कंसेंट्रेशन 0 और 0 होगी। सिंस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड्स क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। इसकी कंसेंट्रेशन 5 × 10 raised to power 4, इसकी कंसेंट्रेशन 5 × 10 raised to power 4 -4। ना हमारे पास में यहाँ H2SO4 से 2 मोल्स ऑफ H प्लस बनते हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। It will come out to be 10 × 10 raised to power -4. It will come out to be 10 raised to power -3. तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो आई वो है 10 raised to power -3। Therefore pH will be equal to minus log of H plus ion concentration, that is 10 raised to power -3। -3 को यहाँ लाओ, that's minus into -3 log of 10, log 10 is equal to 1, that will come out to be +3. Its answer will be 3. Very important question. It has been asked previously in competitive exams. Now एक और important question करेंगे, एक और important question यहाँ पे करेंगे। यहीं पे अगर हम निकालेंगे pH of 0.05 molar H2SO4, इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे। 0.05 molar H2SO4 means H2SO4 dissociates to give 2 H plus ions and SO4 2 minus ions. Now 0.05 is concentration, इसकी 0 होगी, इसकी 0। आफ्टर टाइम t सेकंड्स इसकी कंसेंट्रेशन 0.05, इसकी 0.05। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, pH के लिए हमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जरूरत है। तो 1 से 2 मोल्स बनते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 5 are 10, 200 200, after 2 digits that is 0.1, 0.1 means 1 divided by 10, that's 10 raised to power -1। तो ये निकल के क्या आएगा, 10 raised to power -1। pH will be equal to minus log of H plus ion concentration, that's 10 raised to power -1। -1 को यहाँ लाओ, it will be equal to minus into -1 log 10, log 10 is 1, that is 1। ना एक और क्वेश्चन यहीं से करेंगे। pH ऑफ 0.00001 नॉर्मल H2SO4, यहाँ पे नॉर्मलिटी दी हुई है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था, जब भी हमें pH निकालना होता है, हमें जो कंसेंट्रेशन है वो हमें मोलैरिटी में एक्सप्रेस करनी है। तो हमारे पास में एक रिलेशन है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। n factor in case of acids and bases, it's number of H positive ions or OH negative ions given by acid or base. Now see, n factor for H2SO4, H2SO4 dissociates to give 2 H plus ions and SO4 2 minus 2 H plus ions means n factor is equal to 2. Therefore normality is equal to molarity into 2. Molarity is equal to normality divided by 2. Molarity is equal to normality divided by 2. Normality divided by 2 means normality is given, molarity is equal to normality, that is 0.001 divided by 2. 0.001 means 10 raised to power -3 divided by 2. This is molarity. Now this becomes pH of 10 raised to power -3 divided by 2 molar solution, that is 0.5, or we can write it like this. We can write it like this, 10 raised to power -3 divided by 2 into 1। इसको अगर इसे कट करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.5 into 10 raised to power -3।
10 raised power minus 3. 0.5 means 5 divided by 10 into 10 raised power minus 3. That is 5 into 10 raised to power, इस 1 को ऊपर लेंगे -4. ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना. हमें पता है H2SO4 it dissociates to give H plus and SO4 2 minus ions. ना हमारे पास में गिवन है मोलरिटी 10 raised to power -3 divided by 2. ना ये तो हमारा मोलरिटी ऑफ H2SO4 है. अगर ये डिसोसिएट हो गया तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन -2. इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि 1 से 2 बनते हैं, तो 2 and 2 will cancel, it will be 10 raised power -3. Now you can determine pH of the solution, that will come out to be 3. This question has also been asked. Such questions have been asked in competitive exams. Now बहुत ही ज़्यादा important question discuss करते हैं, that is pH of, very interesting question, pH of 10 raised to power -8 molar HCl. ये बहुत बार पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेन में पूछा गया है, आपके नीट में भी ये पूछा गया है. अगर हम यहाँ पे इसका पीएच निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डायरेक्टली अगर निकालेंगे तो 8 के बराबर आएगा. बट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड का पीएच 7 से ज़्यादा नहीं होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 7. तो क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा. जुगाड़ ऐसे लगाएंगे, हमें पता है जो वाटर है ये डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन्स. हमें पता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ न्यूट्रल वाटर इट इज 10 raised power -7. और यहीं पे हमारा HCl है, ये डिसोसिएट होता है H प्लस एंड Cl माइनस आयन्स. यहाँ जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 raised to power -8 है. ना कहने का मतलब ये है, हमारे पास में एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास में वाटर है, इस वाटर में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर इट्स इक्वल टू 10 raised power -7. अब इसी बीकर को हमने H प्लस आयन एसिड से डाले तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई, 10 raised to power -8. हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इन दो कंसंट्रेशन को बिकॉज इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस ऑफ ओनली 10 इज देयर, 10 raised to power -8 एंड 10 raised power -7 ऑलमोस्ट सिमिलर कंसंट्रेशन है. तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो भी हमारे पास H प्लस है वो फ्रॉम वाटर है या HCl से है. तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस एंड इन ऑल दोज केसेस वायर डिफरेंस इज ऑफ 10 मीन्स वायर वी हैव 10 raised power -8 मोलर, 10 raised power -6 molar, we can take concentration of H plus from water as well. तो यहाँ पे हम वाटर की H प्लस आयन फ्रॉम वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हम दोनों की कंसंट्रेशन को लेंगे. तो ले लो दोनों की कंसंट्रेशन. क्या मसला है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन. ना यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 raised power -8 और 10 raised to power -7 है. दिस -8 फ्रॉम HCl, दिस फ्रॉम वाटर. ना क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस लॉग 10 raised power -8 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा, 10 raised power -8 को बाहर निकाला 1 into 10 raised power -8 is equal to this plus 10. 10 raised power -8 into 10 raised plus 10 raised power -1, 10 raised power -8, 10 raised power -1, this will come out, sorry, 10 raised power +1, this is 10 raised power +1, it will come out to be 10 raised power -7. वही तो है 10 raised power -7. ना इसी को अगर सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग 10 raised to power -8 माइनस लॉग 10 raised power -8 प्लस 11, 10 + 1 is 11. ना दोनों को लॉग लगाएंगे, माइनस का साइन बाहर रखेंगे, इट इज लॉग 10 to the power -8 प्लस लॉग 11. ना सॉल्व अगर करेंगे -8 को यहाँ लाओ, इट इज माइनस इंटू -8. log 11 का वैल्यू होता है 1.4. log 11 इज इक्वल टू 1.4. आपको याद रखना है log 11 का वैल्यू है 1.4. इसको अगर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस दैट्स 8 प्लस माइनस माइनस दैट्स 1.4. 8 में से 1.4 को घटाएंगे, इट विल कम आउट टू बी 6.96. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6.96. दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड. आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, इट इज बिटवीन अबव 8, pH of 10 raised power -8 molar HCl is greater than 8,
It is very less than 7. It is between 6 and 7. It's between 6 and 7. तो अब हम डिस्कस करेंगे हम pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कैसे निकालेंगे. वीक एसिड को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट वही लगेगा वीक बेस में. वीक एसिड को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है डिटरमाइन pH ऑफ 8 मोलर एसिटिक एसिड. Determine pH of 8 molar acetic acid. Determine pH of, let us take 9 molar या 10 molar acetic acid given K is equal to, K तो हमारा कुछ दिया हुआ है, given K is equal to 2 into 10 raised to power 8. Let us take 8 molar, 2 into 10 raised to power minus 8. एसिटिक एसिड हमारे पास में वीक एसिड है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करना है. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं. हमारे पास में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड. इट डिसोसिएट्स टू गिव एसिटेट आयंस and it gives H positive ions, or you can write H3O plus ions. Now अगर इसकी concentration C है at time t is equal to 0, इसकी 0, इसकी 0. अगर इसमें C अल्फा डिकम्पोज होता है then it remains C minus C अल्फा. ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा. यहीं पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाई थी. इसलिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ने से पहले ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन वाला लॉ का लेक्चर जरूर पढ़ना होगा. तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आती थी, दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. C अल्फा स्क्वायर. सोचो अगर हमारे पास में अल्फा मिल गया तो हमें H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मिलेगी, क्योंकि C तो गिवन है. C हमारे पास में 8 मोलर है, दिस इज 8 माइनस 8 मोलर, 8 अल्फा. यहाँ पे कितना बनता है, 8 अल्फा. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें H प्लस से गर्ज है. दिस C इट इज 8 अल्फा. ना हमारे पास में अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो हमें अल्फा निकालना है, तब जाके हम H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 8 अल्फा. नाउ डिटरमाइन अल्फा. अल्फा इज इक्वल, वी नो दैट फ्रॉम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. अल्फा इज इक्वल टू that is K divided by C, root of K divided by C. K तो हमारा गिवन है, Ka कितना है, 2 into 10 raised power minus 8, और C भी गिवन है, C is 8. इसका रूट ले लो, concentration is 8 molar. Now 2 1s are 2, 4s are, that will come out to be under root of 10 raised to power minus 8 divided by 4. Root 4 is equal to 2, root 10 raised power minus 8 is equal to 10 raised power minus 4. That will be equal to 10 raised power minus 4 divided by 2. इसका रूट ले लो, 2 square, root square and root will go, 10 raised power minus 4 का square, square and root will go, 10 raised power minus 4 by 2. It is alpha. This is alpha. Now alpha मिल गया, अब हम H plus आयन की concentration निकाल सकेंगे. अगर alpha मिल गया तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकेंगे. H प्लस आयन इज इक्वल टू 8 इंटू अल्फा, दैट इज 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. 2 4s are, दैट्स 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4. अब कुछ नहीं, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मिल गई. अब हम डायरेक्ट pH निकाल सकते हैं. वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 4 into 10 raised to power minus 4. माइनस को बाहर रहने दो, log a into b is equal to log a plus b, that is minus, that is log 4 plus log 10 to the power minus 4. minus 4 को यहाँ लाओ, it becomes 4 log 10, log 10 is 1, it becomes 4, that is minus log 4 plus 4. ना log 4 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा log वैल्यू याद रखने की. log 1 0 के बराबर होता है, log 2 0.3, log 3 0.47, log 4
0.60, log 5 approximately 0.7 or 0.69, that's approximately 0.7, log 5, log 6 0.7, log 7 0.8, log 8 0.9, log 9 0.95, log 10 इज इक्वल टू 1। तो कुछ भी बहुत इजी है याद रखना। log 1 0 है, 2 से एक ऐड करो 3, 2 का वैल्यू 0.3, 3 का वैल्यू 0.4, इसको रहने दो, 5 का वैल्यू ऑलमोस्ट 7, 0.69, 0 दैट इज ऑलमोस्ट 7, 6 का वैल्यू 7, 7 का वैल्यू 8, 8 का वैल्यू 9, 9 का वैल्यू ऑलमोस्ट 10। इजी याद रखना है। तो log 4 इज इक्वल टू 0.60। अगर आपको ऐसे भी नहीं आएगा तो आप log 4 निकाल सकते हो। log 4 इज इक्वल टू log 2 raised to power 2, 2 को यहाँ ला, that is 2 log 2, log 2 is equal to 0.30, that is 2 into 0.30, that is 0.60, that is 0.60। now सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू log 4 कितना है 0.60 प्लस 4। now this will be equal to minus 0.60, oh sorry, so I had a mistake, this is minus 4, this minus will come over here, this is minus 4, minus into minus is plus 4, that is 4 minus 0.60 is 3.40, 3.40 will come out to be pH of this solution। I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now, अब हम pH में से एक और क्वेश्चन करेंगे, वो है pH ऑफ मिक्सचर्स। मैंने आपको pH में एवरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाया है। अब आप कोई भी लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्सेप्ट pH ऑफ साल्ट। साल्ट्स मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए हमें पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स डिस्कस करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स डिस्कस करने के बाद ही हम साल्ट्स का pH निकाल सकते हैं। नाउ एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, pH ऑफ मिक्सचर। pH ऑफ मिक्सचर, दिस इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने इस pH लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप आप दोनों पार्टों को व्यू करोगे। मैंने कल भी इसका एक वीडियो लेक्चर बनाया था, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसको मैंने लास्ट पे डिलीट किया। आज मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स पे क्वालिटी बढ़ाने के लिए 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। दोनों पार्ट्स में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस की, सो दैट आप यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल कैलकुलेटिंग pH ऑफ एनी गिवन क्वेश्चन। pH ऑफ मिक्सचर, अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं HCl का एक सोल्यूशन, ये लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम 20 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl। एक और HCl का सोल्यूशन लेते हैं, ये लेते हैं 0.0001 मोलर HCl या HNO3 का लेंगे, 2 डिफरेंट लेंगे, और इसका वॉल्यूम हम लेंगे 40 ml। अब दोनों को मिलाते हैं, दोनों के मिलाने के बाद क्या होगा, हमारे पास में सोल्यूशन बनेगा। इस सोल्यूशन में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो HCl की भी होगी, और जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो किसकी होगी, वो HNO3 की भी होगी। और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का ऐड होगा, दैट इज 60 ml। ना अब हम क्या करते हैं सोल्यूशंस में, हम मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, एम मिक्सचर। हमें पता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला थी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। नाउ M1, दिस इज M1, दिस इज V1, दिस इज M2, दिस इज V2। बस कुछ नहीं करना है। M1 इज 0.01, this is 0.01, V1 is into 20 plus M2 is 0.0001, V2 is into 40 divide by V1 plus V2, that's 20 plus 40।
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 into 20, that is 20 divided by, this is 1 and 2 0 100, this is 2 by 10, that is 0.5. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001, that is 1 divided by 1000, इंटू क्या करना है 40 करो इंटू, that is 4 by 100. 4 by 100 is 1 divided by 25, that's 1 divided by 25, or simply I will write 4 by 100 into 4 by 100. It's 4 by 100. 4 by 100 means, sorry, 4 by 100 means, oh yes, it is 4 by 100. 4 by 100 means 0.04. 0.04 divided by 60. ना इन दोनों को ऐड करेंगे 0.04, 0.50, 450, 0.54 डिवाइड बाई 60. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकलेगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर. मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, इस मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में हमें मिलेगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. मोलैरिटी मीन्स कंसेंट्रेशन. इसको सॉल्व करने के बाद हमें कंसेंट्रेशन निकलेगी. नाउ लेट अस सॉल्व इट. It will become lengthy. Question becomes somewhat different. 0.54 divided by 60, that will be equal to 54 divided by 600. 6 nines are, that will be equal to 9 divided by 1000, that is 0.009, or it will be equal to 9 divided by 10 raised to power 3, 9 into 10 raised to power minus 3. This comes out to be 9 into 10 raised to power minus 3. Now concentration of H plus, that is molarity, comes out to be 10 raised to power minus 3. 10 raised to power minus 3. 9 into 10 raised to power minus 3. अब इसी में से हम क्या निकालेंगे, pH. pH will be equal to minus log of 9 into 10 raised to power minus 3. ये फिर क्या हुआ, log A into log B. माइनस को बाहर रहने दो, अंदर log ले लो, that's log 9 plus log A into log B is log A plus B plus log 10 raised to power minus 3. Now log 9 हमें पता है it's equal to 0.95. जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, that was very easy to remember. That is 0.95. Almost that's equal to 1. 0.956. It's equal to almost, you can take approximately equal to 1. Or take 0.95 minus into 0.95. 3 को यहाँ ला, ये बनेगा minus 3. Minus plus, that is 3. Minus plus minus 0.95. 2 minus 0.95, it will be 3 minus 0.95, it will be equal to 2.05. 5, 5, 10, 9, 1, 10, 2, 1, 3. This is the pH of mixture. How you can determine pH of mixture? So guys, यहाँ पे मैंने pH of strong acids, strong bases, weak acids, weak bases और pH ऑफ मिक्सचर्स डिस्कस किया. आई होप कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन करेंगे. लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो. बस एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे. डिटरमाइन pH ऑफ 10 raised to power minus 2 molar NaOH. Minus 2 molar CaOH whole twice. Yeah, let us take BeOH whole twice. Barium hydroxide. It's a strong electrolyte. Barium hydroxide dissociates to you Be2 plus plus twice OH minus. 10 raised to power minus 2. दो बनते हैं. 2 into 10 raised to power minus 2. pH निकालना है. pH will be POH. यहाँ pH नहीं निकाल सकते हैं. पहले POH निकालना है. Minus log of OH negative ion concentration. OH negative ion concentration is minus log of 2 into 10 raised to power minus 2. माइनस को बाहर रहने दो. This is log 2 plus log 10 raised to power minus 2. log 2 पता है 0.30 होता है. 0.30. 2 को यहाँ लाओ. It is minus 2. Minus plus, that is 2 minus 0.30. That's 1.70. इसका pH निकल के आया, POH निकल के आया 1.70. निकालना है क्या है pH. We know that pH plus POH is equal to 40.
pH will be equal to 14 minus POH, that's 1.70. 14 को 12.30, that's 12.30 because it is basic, it will be more than 7. तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ अपना लेक्चर. अगर आपको मेरे लेक्चर्स, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मिलता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.